रसाला ताक़िब اس میں دکھاوا شامل ہے، وہ عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں وہ حاجی نمازی سب کہلا جائیں، اللہ کے نزدیک اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس عبادت میں اخلاص نہ ہو، صرف اللہ کے لیے نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں ریا سے خالی عبادت، یعنی وہ سجدہ، وہ عبادت جو دکھاوے سے خالی ہے۔ یہ تو کروڑوں میں لاکھوں میں کسی کو یہ سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو علامہ روم جو ولیوں کے صوفیوں کے سردار اور امام کا نام ہے، آج ان کی کتاب مثنوی شریف کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے، اور کثرت سے مجھ سے زیادہ مغرب کے لوگ، یعنی ویسٹرن کنٹریز کے لوگ مجھ سے زیادہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، چونکہ سب کو آج روحانیت کی تلاش ہے، پیسے سب کے پاس آ گئے، اب روحانیت کی جستجو میں لوگ بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف علامہ روم نے کہا تھا، تھوڑی دیر نیک لوگوں کے ساتھ رہ جانا 100 سال کی ریا سے خالی عبادت سے بہتر۔ اللہ حسن، تھوڑی دیر نیک لوگوں کے ساتھ رہ جانا۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، جہاں 40 مسلمان رہتے ہیں وہاں ضرور کوئی ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جہاں 40,000 مسلمان رہے ہیں وہاں کتنے اللہ کے ولی ہوں گے، اور جہاں 40 نہیں 400 علماء کرام رہیں، ایک عالم 1000 عابد پہ بھاری ہوتا ہے، اور جہاں سینکڑوں علماء رہیں ضرور وہاں علاقے کا کوئی نہ کوئی قطب اور ابدال ہوتا ہے۔ تو بشارت صاحب نے ایک ایسی نشست ہم کو اور آپ کو دے دی کہ چلو چند لمحے اس طرح گزار لو کہ تاکہ قطب ابدال ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان عالم دین کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ کام کی مشین ہے یہ، اللہ حسن۔ ابھی میں نورانی صاحب کا خطاب ہو رہا تھا، میں ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد دارالعلوم اور اسکول دیکھنے کے لیے گیا، چونکہ میں خود اسکول کالج سے وابستہ رہا، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، اور یہ جو بھی اسکول کی جتنی ڈگریاں ہوتی ہیں وہ ساری ڈگریاں محنتوں سے حاصل کی ہیں۔ مدرسے میں چٹائی پر بیٹھ کر الف با سے لے کر بخاری شریف کی آخری حدیث تک وہ مدرسے میں پڑھا۔ تو دونوں تعلیم گاہوں اور درسگاہوں کا تجربہ مجھ فقیر کو ہے۔ اکثر مدرسوں میں غریب، مسکین، یتیم، خستہ حال لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مالداروں کے بچے کم پڑھتے ہیں، اس لیے وہاں کا مینجمنٹ بھی اسی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ کہیں درسگاہ ٹھیک ہے تو ہاسٹل صحیح نہیں ہے، کہیں ہاسٹل صحیح ہے تو ٹوائلٹ صحیح نہیں ہے، کہیں ٹوائلٹ صحیح ہے تو آفس ہی نہیں ہے۔ تو دماغ میں تمنا رہتی تھی کہ وہ دور تھا جب درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگ قطب ابدال بنتے تھے، فقیہ بنتے تھے۔ ابھی اس دور میں جب مسجد نبی کی عمارت چمک رہی ہے اور مسجد حرام کی عمارت چمک رہی ہے، ساری دنیا کی عمارتوں کو وہاں کی چمک فیل کر رہی ہے۔ اللہ نے اس چمک دمک کے زمانے میں ایسا خزانہ وہاں کی زمین سے نکال دیا، اگر وہ نہیں نکلتا تو ہندوستان سے چندہ مسجد نبی کی تعمیر کے لیے جاتا، امریکہ سے چندہ آتا، پاکستان سے چندہ جاتا، تو اللہ کے رسول کے گھر کی تعمیر کے لیے ہندوستان سے چندہ جائے یہ اچھا نہیں تھا۔ تو اللہ نے زمین سے خزانے کو ایسا نکال دیا کہ اب وہاں کی عمارت امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی چمک دمک کو پھیکی کر رہی ہے۔ تو اس دور کے حساب سے بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں جب وہ حرم شریف کے ایک نل کی قیمت کا اندازہ وہ لگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کے صدقے ہم سبوں کو دونوں جہان کی ہریالی عطا فرمائے۔ تو میں سوچتا تھا کہ مدرسے کو بھی اسکول اور کالج کی طرح بالکل ویل فرنشڈ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے چندہ چاہیے۔ چندہ تو روپے پیسے تو بکھرے ہوئے ہیں، مگر محنتی آدمی چاہیے جس کے پاس جنون چھا جائے کام کرنے کا، وہ ضرور اسکول اور کالج کے مقابلے میں ایک اچھا ادارہ قوم مسلم کو عطا کر دے گا۔ ہندوستان میں دلی یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، پٹنہ یونیورسٹی، لکھنؤ یونیورسٹی، بہت ساری یونیورسٹیز موجود ہیں،
لیکن ایک درویش نے ٹھان لیا کہ ہمارے بچے مدرسے کی عمارت کو دیکھ کر JNU کی عمارت کو بھول جائیں۔ اس درویش کامل نے جب عہد اور کمر کس کے انہوں نے عمارت کی تعمیر کی تو جامعۃ الرضا جیسا ایک ادارہ قوم کو ملا جس کی عمارت کے سامنے تاج محل کا قد بھی چھوٹا دکھائی پڑ رہا ہے۔ اسی درویش کامل کو ہندوستان تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یعنی آدمی ٹھان لے اور ڈکشنری آف جنون کو پڑھ لے تو پھر وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ کمزور قسم کا آدمی کریں کہ نہیں کریں گے تو کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ میں نے وہی اسی جنون کی چھوٹی سی خراج بشارت ثقافی صاحب کی شخصیت میں نے محسوس کیا۔ الحمدللہ میں نے خوبصورت مدرسے کو دیکھا، ایک کانفرنس ہال، شاندار اسٹیج، ثقافت السنیہ جانے کا اتفاق ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے۔ وہاں کے فنکشن ہال کو جب میں دیکھا اور دارالحدیث کو تو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ ہمارے علاقے کے 4-5 مدرسے صرف درس بخاری والے ہال میں سما جائے ہیں، اتنا بڑا ہال ہے، چونکہ یہ وہیں سے پڑھ کے آئے تھے، بریلی جامعۃ الرضا سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس لیے دونوں مدرسوں کی تعلیم کے بعد ان کے دماغ میں آیا کہ پنچ جیسے علاقے میں جہاں گورنمنٹ نے ایئرپورٹ تک نہیں تعمیر کی، جہاں گورنمنٹ نے ریلوے لائن نہیں بچھائی، ان لوگوں نے اسے ایک یعنی بیکورڈ علاقہ سمجھ کر کے اس کی ترقی پہ دھیان نہیں دیا۔ تو بشارت صاحب نے کوشش کی چلو ایئرپورٹ رہے نہ رہے، ریلوے لائن رہے نہ رہے، کم سے کم ایک مضبوط درسگاہ رسول کا قیام ہو جائے۔ یونیورسٹی اور اسکول کے کالج کے طرز پر انہوں نے جو شاندار کلاس روم، ہاسٹل روم، لڑکوں کے شاندار بیڈ کا انتظام، ٹوائلٹ اور باتھ روم، سب انتظام کے انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کے جتنے بھی عزائم ہیں، جتنے بھی پلانز ہیں، ان تمام اولیاء و صالحین کے صدقے تمام خواب کو شرمندہ تعبیر فرما دے۔ اور انہوں نے سوچا کہ درسگاہ میں تو لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، بچوں کو میں پڑھاؤں گا، لیکن بچوں کے باپ کو دین کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ اس لیے انہوں نے سالانہ فنکشن کر کے محبت رسول کانفرنس منعقد کر کے آپ کو دعوت دی تاکہ آپ کے بچے وہاں پڑھیں گے اور آپ سال میں ایک دن یہاں پڑھیں گے تاکہ آپ کا بچہ نائب پیغمبر بن کے یہاں سے نکلے اور آپ کے گھر میں دینی ماحول آپ کی وجہ سے پیدا ہو جائے۔ ایسا جلسہ قائم کیا کہ ہم لوگ تو 4 مہینے کی تیاری کے بعد اتنے لوگ جمع نہیں کر پاتے ہیں۔ بشارت صاحب نے مختصر دنوں کی تیاری کے بعد اتنا بڑا جلسہ، اللہ الصمد، چاروں طرف سے پنڈال خالی نہیں ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ اب اس میں بیٹھ سکیں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں بریلی شریف کے اسلامیہ انٹر کالج کے گراؤنڈ میں خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ الصمد، حد نگاہ تک صرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ مجھے مایوسی رہتی تھی جب ہمارے جلسے میں کم پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے۔ اکثر و بیشتر میں بولا کرتا تھا کہ کم پڑھے لکھے لوگ دلی اور بمبئی کے جلسے میں رہتے ہیں، رکشہ چالک، ٹھیلا چالک، اور پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے۔ رام دیو جی کے جلسے میں، جو ہمارا یوگا ماسٹر ہے پورے انڈیا کا، اتراکھنڈ کا، اس کا پروگرام ہمارے پردھان منتری جی بھی سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یوگا ماسٹر صحت مند رہنے کا کیا کیا نسخہ بتا رہے ہیں۔ اس کے پروگرام میں DIG، IG، CM، PM، DM سارے لوگ آتے ہیں، چونکہ سب کو صحت پیاری ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں ان کا پروگرام دیکھنا پڑے گا۔ اب وہ یوگا ماسٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شوگر سے بچنا ہے تو ایسے ہاتھ اٹھائیے، ایسے نیچے کیجئے، آنکھ بند کیجئے۔ ان کا پروگرام سب لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے جلسے میں غریب، مسکین، ٹھیلا چالک یہ آتے ہیں، مگر آج الحمدللہ میں نے یہ محسوس کیا کہ بشارت صاحب نے جن لوگوں کو دعوت دی ہے وہ صرف رام دیو کے جلسے میں CM اور DIG نہیں پہنچتے ہیں، محبت رسول کانفرنس میں آج ٹیچرز موجود ہیں، آج IAS آفیسر موجود ہیں، آج پولیس عملے کے ذمہ دار موجود ہیں۔ یعنی اس جلسے میں ہر طبقے کی نمائندگی ہے تاکہ جان لے وہ دنیا داروں کا جلسہ تھا جہاں CM آتا تھا، اور یہ محبت رسول کانفرنس ہے جہاں ان سے زیادہ علماء نائب رسول آئے ہیں۔
आप ही डीएम भी आए हैं, मगर जहां उलमा और डीएम का तकाबुल होगा तो एक आदमी डीएम रह सकता है, एक आदमी अरबपति हो सकता है, एक आदमी पीएम हो सकता है, ये बात अपनी दुरुस्त है। लेकिन बंबई के एक अरबपति ने एक आलिम दीन का हाथ चूम के कहा था कि तुम नर्वस मत होना कि मैं अरबपति के घर में बैठा हूं, मैं अरबपति हो सकता हूं, मैं 5 फैक्ट्री का मालिक हूं, मेरे पास 50 बसें हैं, मैं अरबों में खेलता हूं, मेरे पास कई कमर्शियल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद है, मैं सब हूं, मैं किंग हो सकता हूं, मैं नवाब हो सकता हूं, मैं एक कैपिटलिस्ट हो सकता हूं, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हो सकता हूं, मगर इतनी पूंजी रखने के बावजूद नाइबे रसूल मैं नहीं हो सकता। नाइबे रसूल तो तू ही है जो मुस्तफा का नाइब बनकर सीने में कुरान हदीस का इल्म जिसके पास है वह मुस्तफा का नाइब है। इससे बड़ा कोई मनसब नहीं, इससे बड़ा कोई मनसब नहीं। नाइबे रसूल होना इतना बड़ा मनसब है कि 1000 बीघा जमीन भी कोई जोते, कोई अरबपति हो जाए, कोई बिजनेसमैन हो जाए, कोई भी अलग बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नबीराए आला हजरत तस्लीमुल मशाइख हजरत अल्लामा तस्लीम रज़ा खान साहब किबला, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत अल्लामा सैयद बशारत साहब किबला, हुजूर मुफ्ती सुलेमान साहब किबला। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाए आप। अब महफिल का रंग दोबाला हो गया है। पहले सारे बाराती बैठे थे, अब दूल्हा तशरीफ ले रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है, दूल्हा के बगैर बारात की हैसियत कमज़ोर रहती है। सारी बहारें हमारे इन मशाइख और औलिया बुज़ुर्गान दीन के ख़दमे नाज का नतीजा है। अब जिस आला हज़रत के शहर से हमें मोहब्बत और अक़ीदत का रिश्ता हमारा वाबस्ता है, उसी शहर अक़ीदत का एक ज़बरदस्त नुमाइंदा हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुका है। आला हज़रत का हम लोगों ने नाम सुना है, हुज्जतुल इस्लाम का हमने नाम सुना है, लेकिन जब उनके ख़ानदान के इन चश्मो चराग के चेहरों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जब सितारे का यह हाल है तो सूरज का हाल क्या होगा। अल्लाह ने उस ख़ानदान को वो इज्जत दी है कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उस ख़ानदान का चश्मो चराग पहुँचता है, महफिल का रंग दोबाला हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस ख़ानदान को जहाँ से इश्क़ रिसालत का पैगाम सारी दुनिया में आम हुआ, अल्लाह उस ख़ानदान की इज़्ज़त को रोज़ अफजों उसमें इजाफ़ा फरमाए और हम सबों को वहाँ से हमेशा वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सारे लोग खामोशी के साथ बैठे रहें। मशाइख आ चुके जिनकी कमी थी, हुज़ूर सैयद आरिफ साहब क़िबला और हमारे दूसरे बशारत हुसैन साहब क़िबला, सैयद बशारत साहब क़िबला, ये सारे हमारे मशाइख आ चुके हैं। बस आपकी सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है कि अब आपको गुफ्तगू भी सुननी है और इन लोगों के चेहरों की ज़ियारत से अपने सीने को रोशनी भी अता करनी है। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने ये कहा था कि ज़मींदार होना आसान है, नाइब पैगंबर होना बड़ा मुश्किल है। और नाइब पैगंबर जो हो जाए उससे बड़ा कोई मनसब नहीं है दुनिया में। मगर दुनियादारों की निगाहों में, दुनियादार की निगाहों में दुनियावी ओहदेदारों की बड़ी अच्छी पोजीशन होती है, यानी जो लोग जिस तरह के होते हैं उसी तरह की पसंद उसकी होती है। तो उन लोगों की पसंद का ख्याल करते हुए भी आज की महफिल में बहुत सारे अफसरान, बहुत सारे स्कूल कॉलेज के मुलाजमीन और बहुत सारे तालीम याफ्ता अफराद यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आज की इस मजलिस में एक छोटी सी गुफ्तगू ऐसी हो जाए ताकि हमारे नौजवानों के चेहरे पे जो उदासी है, जो मायूसी है,
اس کو پتہ چل جائے کہ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں آپ کے مذہب کے تعلق سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کا دائرہ ممکن ہے کہ آگے چل کر تنگ ہونے والا ہے، مگر میں نے کل اس پہ ایک تھوڑی سی روشنی میں نے ڈال دی ہے کہ مذہب اسلام اس مذہب مہذب کا نام ہے جو جھکنے نہیں آیا ہے بلکہ ہمیشہ بلند ہونے آیا ہے۔ مذہب اسلام دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اس کی نمائندگی موجود ہے۔ 150 کروڑ لوگ دنیا کے ہر کونے میں مصطفیٰ کے غلام کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے جیسے مخالفت بڑھتی جاتی ہے مصطفیٰ کا چمن ہرا بھرا ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن چونکہ چند لچے لفنگے ان کی عادت ہی ہوتی ہے امن کو بھنگ کرنا، لوگوں کو مایوس کرنا، اور اس کو اچھائی اچھی نہیں لگتی ہے، وہ شرارت کر کے ماحول کو پولوٹیٹ اور پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد مٹھی بھر ہے۔ ایسے لوگ امریکہ میں بھی موجود ہیں، ایسے لوگ چائنا جاپان میں بھی ہیں، ایسے لوگ ملک ہندوستان میں بھی ہیں۔ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں امن کی بات کروں گا تو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا، وہ جانتے ہیں کہ میں شانتی کی بات کروں گا تو میرا نام پوسٹر میں نہیں چھپے گا، وہ جانتے ہیں کہ میں شانتی کی بات کروں گا تو کوئی مجھے پھول کا ہار نہیں ڈالے گا۔ وہ پھول کا ہار پہننے کے لیے، سونے چاندی کے سکے پہ اپنے آپ کو تولوانے کے لیے اور چند لوگوں کا ہیرو لیڈر بننے کے لیے وہ غلط بیانی کا سہارا لیتے ہیں، غلط بیانی کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، فتنوں فساد کی بولی کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان چند شریر قسم کے لوگوں کی بکواس پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ میں آج بتاؤں گا کہ دنیا کے ہر گوشے میں کس طرح قرآن کریم کی تلاوت کا رجحان بڑھ رہا ہے، کیسے قرآن کریم کی آیتوں پہ غور و فکر کا مزاج بڑھ رہا ہے، کیسے سرکار دو جہاں کی ہولی لائف مقدس زندگی کی اسٹڈی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور کس طرح دھیرے دھیرے دنیا کا ایک سلیکٹڈ ایجوکیٹڈ طبقہ، یعنی ایک پڑھا لکھا طبقہ مذہب اسلام کے قریب آتا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں قریب آئے گا جب ہزار چاروں طرف سے دماغ دوڑانے کے بعد لوگ آقا دو جہان اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صحت پانے کے لیے آج کے دانشوروں نے جو نسخہ دیا ہے، جب میں اس کی اسٹڈی کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے اس کے نسخے کی مجھ کو ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھ کو صحت مند رہنے کا شاندار پیغام دیا ہے، اس لیے یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا رہنما ہے۔ چنانچہ ہالینڈ کا ایک پادری وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے تو ہمیشہ کھاتے پیتے مت رہیے، بلکہ اپنے پیٹ کو، اپنے کڈنی کو، اپنے آنت کو، اپنے لیور کو، اپنے معدے کو آپ خالی رکھیے، اس کو سکون دیجیے تاکہ آپ صحت مند رہے۔ یعنی آبزرو فاسٹ یو ول بی ہیلدی۔ اسی مثال سے آپ پتہ لگائیں کہ دانشوروں کی نگاہیں اسلام کی طرف کس طرح مرتکز ہو رہی ہیں اور کس طرح دھیرے دھیرے ان کے سینے میں اسلام داخل ہو رہا ہے۔ چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اندھ بھکت نہیں ہے، اسے دلیل چاہیے اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام کی سچائی کے لیے اسے دلیل چاہیے۔ اسلام کیوں حق مذہب ہے اس کو واضح طور پر کوئی دلیل سے سمجھا دے تاکہ اسے قبول کر لے۔ یہ دلیل کی دنیا ہے، یہ انویسٹیگیشن کی دنیا ہے، یہ تھنکنگ اور یہ سگھن ادھین کی دنیا ہے۔ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، دلیل تلاش کرتے ہیں، صرف بکواس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ جو جادوگر ہے، جو چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر ڈگڈگی بجا کر چند بیوقوفوں کو جمع کر کے اپنی جادوگری کے کمال سے چند سکے کما لیتے ہیں، لیکن کوئی عقل مند، کوئی پڑھا لکھا آدمی اس جادوگر کی بات پہ دھیان نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کرتب ہے، ایک تماشا ہے، اور ماننے کا جہاں تک سوال ہے دل اس کو تسلیم کرے، اس کے لیے آرگومنٹ چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے واضح روشن بیانات چاہیے۔ تو آج کی سائنٹیفک دنیا میں انویسٹیگیشن، ریسرچ، یہاں پہ تحقیق اور تجسس، تبسم، تعقل، تفکر کی دنیا میں اب بکواس نہیں چلے گی۔ اندھ وشواس کے فالوور چند لوگ ہیں، مگر یہاں دنیا کا کریم طبقہ مذہب اسلام کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دو، پھر اب میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ ہالینڈ کا پادری کہتا ہے اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے تو آپ مہینے میں 2-4 دن فاسٹنگ کیا کیجیے، اپواس کیجیے تاکہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے آپ کا معدہ خالی رہے، آپ کی کڈنی کو آرام ملے، ہر وقت آپ پانی پیتے رہیں، چائے پیتے رہیں، کھانا کھاتے رہیں، اس سے ہر وقت کڈنی
किडनी हरकत में रहती है, हर वक्त पेट को मेहनत करना पड़ता है, उससे पेट बीमार, लीवर कमजोर हो जाता है और आजकल लीवर की कमजोरी की शिकायत आमतौर पर बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं कि अगर सेहतमंद रहना है तो 4-5 दिन महीने में आपको रोजा रखना पड़ेगा, यानी अपनी जबान में फास्टिंग करनी पड़ेगी, हिंदी जबान में उपवास करना पड़ेगा। और उनके इर्द गिर्द जितने भी डिसाइपल्स चेला मुरीद आते हैं उनके सबको यही पैगाम देते हैं कि आप फास्टिंग करो, पेट खाली रखो। और हिंदुस्तान में रामदेव जी आज 10-20 साल से यही पैगाम देते हैं कि अगर आपको सेहतमंद रहना है तो महीने में 4 दिन 5 दिन फास्टिंग क्या करें, आप उपवास करें, भूखे रहें। देखें मेरा पेट बड़ा नहीं है, वो कहते हैं, वो अपना पेट पीठ से चिपका कर बोलते हैं कि मेरी सेहत का राज यही है, मैं कम खाता हूं, ज्यादा फास्टिंग करता हूं। और इस वक्त 65-70 साल की उम्र में भी वह योगा मास्टर सेहतमंद रहता। वो कहते हैं अगर आपको सेहत चाहिए तो हर वक्त खाते पीते मत रहिए, यानी खाने के लिए जिंदा मत रहिए। वो कहते हैं जिंदा रहने के लिए खाइए पिए और सारी तवज्जो खाने पे मत डालिए वरना बीमार हो जाएंगे आप। महीने में 4 दिन आप उपवास कीजिए। हॉलैंड के पादरी कहते हैं 4 दिन फास्टिंग कीजिए, सेहतमंद हो जाएंगे। रामदेव जी कहते हैं कि महीने में 4-5 दिन उपवास करें, फास्टिंग करें, आपकी सेहत बनी रहेगी। यही हाल है दूसरे आचार्यों का। वो शंकराचार्य भी कहते हैं कि 2-4 दिन फास्टिंग करें ताकि पेट खाली रहे और आप सेहतमंद रहेंगे। इन लोगों ने आज का सेहतमंद रहने का नुस्खा है कि आप भूखे रहें, उपवास करें, सेहतमंद हो जाएंगे। मैं कहूं आज से 1400 साल पहले ना कोई कॉलेज था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई ऑब्जर्वेटरी थी, ना कोई तजरबागाह, ना कोई रुस्तगाह। उस वक्त एक स्कूल तक नहीं मिलता था, साइंस का नाम तक नहीं था। ये सारी कहानियां 1000 साल के अंदर की हैं। यानी अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था, जिस मुल्क का पता कोलंबस ने 1495 में लगाया। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की तारीख आज से 1500 साल पहले कुछ नहीं थी। जब अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था तो नासा नाम का तहकीकी इदारे का वजूद कहां होता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नाम के सब्जेक्ट्स का वजूद कहां था, उसका वजूद ही नहीं था। वो तो वास्को डी गामा ने इंडिया का पता लगाया, कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। धीरे धीरे अभी 400 साल के अंदर अंदर साइंस ने तरक्की की और उस तरक्की के बाद धीरे धीरे ये सारे सामान हमारे सामने आने लगे। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, प्लेन, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये सारी 1000 साल के अंदर की सारी मेहनतें, सारी कोशिशें हैं। और 1400 साल पहले कहां योगा, कहां एलोपैथिक मेडिसिन, कहां साहब होम्योपैथिक मेडिसिन और कहां इस तरह की साइंसी डेवलपमेंट। मगर हुजूर ने जहां कहा था कि रोजा रखो, जन्नतुल फिरदौस में एक दरवाजा बाबे रैयान है, उससे तेरा दाखिला होगा। रोजा रखो, तेरे मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है। हुजूर ने कहा था रोजा रखो, रोजा रखो, रोजे में मोमिन की रोजी बढ़ा दी जाती है। रोजा रखो, यह गमगुसारी का महीना है, सब्र का महीना है। रमजान में कुरान नाजिल हुआ। ये सारी फजीलतें अपनी जगह, मगर ये स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे और दौरे जदीद का दिलदादा कहता है कि सेहतमंद रहने का नुस्खा अगर हमारे दानिश्वरों ने दिया है, क्या तुम्हारे पैगंबर ने भी ऐसा कुछ कहा है? जन्नत में दाखिला होगा वह उस दुनिया की बात है, अल्लाह का दीदार होगा जन्नत में वह उस दुनिया की बात है। इस दुनिया के ताल्लुक से बताओ तो मैं कहता हूं सरकारे दो जहां की वह हदीस सूरज से भी ज्यादा रोशन मेरे सामने है। आज के दानिश्वरों ने कहा रोजा रखो, सेहतमंद हो जाओगे। हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, न साइंस का कोई नाम, मगर हुजूर की जबान से जो फार्मूला निकला है, क्योंकि सरकार रहमते दो आलम है, दोनों जहान की नेमतों को तकसीम करने आए हैं। वो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक सारे मसाइल का हल बन के आए हैं, सारी जरूरियात की फुलफिलमेंट करने आए हैं। तो सेहतमंद रहने का नुस्खा हुजूर ने कहा कि सूमू तसाहू, रोजा रखो तुम सेहतमंद बन जाओगे। तो मैं कह सकता हूं आज जहां हॉलैंड के पादरी की नजर गई है, आज जहां रामदेव की नजर गई है, आज जहां फ्रांस के वैज्ञानिक की नजर गई है, सेहतमंद रहने के लिए रोजा जरूरी है, वहां नजर रहमते दो आलम की 1400 साल पहले
नारा तकबीर, नारा रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लुच्चे लफंगे तो कुछ बोले, पर यूरोप का दानिश्वर कहते हैं आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो पढ़ते हैं, वो सिर्फ जबान से नहीं सुनना चाहते, वो हकीकत की जुस्तजू करते हैं, वो कुरान करीम की आयतों का तर्जमा पढ़ते हैं, वो सरकार दो जहां की अहादीस का मुताला करते हैं। आज कुरान करीम का तर्जमा दुनिया की सारी जबानों में, लैटिन में, फ्रेंच में, डच में, अंग्रेजी में, यानी तमाम लोकल लैंग्वेजेस और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में कुरान का तर्जमा हो चुका है। तो बकवास करने वाले चंद लोग मुट्ठी भर के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, उसकी बकवास पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि आप ये जाने कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। दुनिया भर में आलमगीर मजहब इस्लाम का मुस्तकबिल इतना रोशन है कि मैं आपको दलाइल से बता दूं कि आज दुनिया में कुरान पढ़ने वालों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है और किस कदर कुरान करीम को अल्लाह की किताब एक्सेप्ट करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये इस बात की दलील है कि कुरान का कोई जवाब नहीं, इस्लाम का कोई जवाब नहीं, मोहम्मद अरबी का कोई जवाब नहीं। अब बकवास नहीं, दलाइल की रोशनी में कुरान करीम में जीने मरने का कानून है, कुरान करीम में हुजूर की तारीफ है, कुरान करीम में शादी ब्याह अकीका खतना सबके दस्तूर मौजूद है। यानी वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह फरमाता है हबीब हमने आप पर वो किताब नाजिल की है जिसमें हर चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ये अपनी जगह है, लेकिन लोग चाहते हैं कि कैसे इस्लाम लाने वाले की तादाद कैसे बढ़ रही है। इस साइंटिफिक वर्ल्ड में लोग तलाश करते हैं कि सच्चाई कहाँ है, ट्रूथ कहाँ है, रियलिटी कहाँ है। अब पढ़ा लिखा आदमी, चूंकि हम लोग पढ़ने लिखने के बाद मुसलमान नहीं बने, ये तो अल्लाह का खास फजल एहसान है कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया, वरना इतने लोग, इतने हजारों का मजमा है, कोई ये बता दे कि मैं पढ़ने लिखने के बाद मुसलमान बना हूं। मैंने रिसर्च की, मैंने तहकीक किया कि मैं हिंदुइज्म सही है कि क्रिश्चियनिटी सही है कि जूस सही है कि इस्लाम सही है। मैंने सारे अध्ययन का मुताला किया और आखिर में इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि इस्लाम हक है, इसको मैंने कबूल कर लिया। नहीं, कोई नहीं, ये तो सिर्फ एहसान अल्लाह का है कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया। मैं मुसलमान हूं, मुताला किसी ने नहीं किया। हमने 2-4-10 पंडितों के पास जाके तहकीक नहीं की, हमने 2-4 पादरियों के पास जाके डिबेट नहीं किया, हमने 2-4 आलिमों के पास जाके बहस नहीं की। हम बगैर बहस के, बगैर डिबेट के, बगैर रिसर्च के, बगैर सच्चाई की तलाश के हम मोमिन हैं। क्योंकि मेरा बाप मोमिन था, तो ठीक है, जो काम दूसरे लोग 10 साल दिमाग जलाने के बाद किए हैं और आपको वह काम पैदाइशी तौर पर नसीब हो गया है, तो फिर इस शुक्र, इस नेमत का शुक्र का तकाजा यही है कि इलाही अगर तू चाहता मुझे इंसान नहीं बल्कि जानवर तू बना देता, मैं छिपकली हो जाती, मैं जानवर हो गया होता, मैं परिंदा हो गया होता, मैं सांप पैदा हो गया होता। लेकिन एहसान है तेरा रब के तूने एक तरफा फजल फरमाते हुए मुझको इंसान पैदा किया। इस पॉइंट पर दुनिया का सारा इंसान अगर गौर कर ले, क्योंकि क़यामत की निशानी है कि अकल छीन ली जाएगी। तुम जाओ अकूलो अक्सरे साले का ज़मान, ये सरकार की हदीस है, आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। लोग रहेंगे डीएम, लोग रहेंगे मिनिस्टर, लोग रहेंगे सीएम, लोग रहेंगे पीएम, मगर अकलें छीन ली जाएंगी। वो अब सिर्फ नकल करना जानेंगे। दूसरों ने बाल कैसा रखा, हमें भी वैसा रखना है। दूसरों ने नेकर कैसा पहना, मुझे भी वैसा पहनना है। दूसरों ने गले में लॉकेट कैसे पहना, मुझे पहनना है। यानी चप्पल का मुकाबला, लॉकेट का मुकाबला, चड्डी का मुकाबला, बिकनी का मुकाबला। जो काम मर्दों का था वो काम औरत करें, जो काम औरतों का था वो काम मर्द करें। यानी अक्ल जब खत्म हो जाती है तो आदमी सोचना छोड़ देता है, और जब सोचना छोड़ देगा फिर वो नकल करना चाहता है। वो नहीं जानता कि इसमें क्या नुकसान है, इसमें क्या फायदा है, मैं एज ए मर्द मैं कैसे रहूं, मैं एज ए औरत कैसे रहूं। नहीं, औरतों की तरह छींट कपड़ा पहनना, औरतों की तरह चटक मटक कपड़ा पहनना, औरतों की तरह कमर तक लंबे लंबे बाल रखना, ये अरब ममालिक में ये ट्रेंड ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैंने दाऊदी साहब के जलसे में अनंतनाग में आज से 4 साल पहले देखा था, एक साहब अरब से मेहमान बन के आए और उनके सर पे देखे लंबे लंबे बाल और औरतों की तरह चूटी और रबड़ बांधे हुए हैं, ये अरब से आए हुए हैं। यानी एक ट्रेंड बढ़ रहा है मर्दों को औरतों की नकल का, और औरतों में मर्दों की नकल
नकल का ट्रेंड बढ़ रहा है, यानी मर्दों की तरह जींस पहनना, मर्दों की तरह टी शर्ट पहनना, मर्दों की तरह साहब जूता पहनना, मर्दों की तरह सर के बाल रखना। जो काम औरतों का था वो मर्द नकल कर रहे हैं, और जो काम मर्द का था वो औरतें नकल कर रही हैं। नतीजे में रिजल्ट के तौर पर क्या हो रहा है, हो यही रहा है कि दुनिया में फहाशी बढ़ रही है, उर्जानियत में इजाफा हो रहा है, ज़िनाकारी बढ़ रही है, दुनिया में रेप बढ़ रहा है, दुनिया में जुल्म बढ़ रहा है। हर एक मिनट पर अमेरिका में रेप का केस दर्ज होता है। जहां मर्द और औरत के दरमियान का पर्दा खत्म हो जाए, जहां हया खत्म हो जाए, जहां शर्म खत्म हो जाए, जहां दूरियां खत्म हो जाए, फिर क्या होगा, वहां रेप होगा, वहां ज़िनाकारी होगी। हर एक मिनट पर रेप का केस दर्ज होता है। आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान के अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 मिनट पे हिंदुस्तान के कोर्ट में रेप का केस दर्ज होता है। और आज 20 साल के बाद की क्या रिपोर्ट होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमने स्कूल का हाल देखा, कॉलेज का हाल देखा, समाज का हाल देखा, दुकान का हाल देखा, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक ये पागलपनी जो आ गई है समाज में। औरतों की नकल मर्द करे, मर्द की नकल औरत करे, इसी ने समाज को सेना दिया है। अमेरिका की पुलिस रोकने में नाकाम है, हिंदुस्तान की पुलिस ज़िना को रोकने में नाकाम है, हिंदुस्तान की अदालत रेप को रोकने में नाकाम है। हर कदम कदम पे पुलिस है, मगर ज़िना को रोक नहीं पा रही है। अमेरिका जैसा मुल्क ताकतवर आर्मी को रखता है, वह ज़िना को रोक नहीं पा रहा है, नहीं रोक पाएगा। जहां बेपर्दगी होगी, जहां दीवानगी होगी, जहां औरत और मर्द में डिस्टेंस नहीं रहेगा, जहां दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, वहां तो ज़िनाकारी होगी। एक कानून है मुस्तफा का कानून पर्दा, एक कानून है मुस्तफा का कानून हया। वह कानून हया, कानून पर्दा अमेरिका में नाफिज हो जाए, वहां से रेप का खात्मा हो जाएगा। हिंदुस्तान में नाफिज हो जाए, यहां से रेप का खात्मा हो जाएगा। दुनिया को ज़िना से रिहाई मिलेगी। एक कानून मुस्तफा का है, दूसरे किसी का कानून ज़िना को रोक नहीं पाएगा। वो कानून पर्दा, वो कानून हया है, आज नाफिज हो जाए, ज़िनाकारी का खात्मा होगा, पाकीज़ा माहौल पैदा होगा। आखिर ज़माने में अक्लें छीन ली जाएंगी, आखिर ज़माने में अक्लें छीन ली जाएंगी। जो काम करना होगा इंजीनियर का, वो काम मौलाना करेंगे, और जो काम मौलाना का था वो काम इंजीनियर करेंगे। अब आप देख लें हालात कितने खराब हो गए हैं। मौलाना हमारे 20 साल तक मदरसे में पढ़ते हैं, अरबी जबान पे भरपूर महारत हासिल करते हैं, उसके बाद इज्तिहादी सलाहियत इसमें पैदा होती है। ये तमाम फनून पे नजर रखते हुए एक इबारत के कितने तर्जमे हो सकते हैं और यहाँ कौन सा तर्जमा मुराद लिया जाए, ये सारी बहसें इनको आती है। लेकिन आजकल देख लें आप नेट पे कोई इंजीनियर है पाकिस्तान का, कौन इंजीनियर है मलेशिया का, कौन सा आप डॉक्टर है फला साहब का। अरे वो डॉक्टर है, वो नाइबे पैगंबर कहाँ है? वो इंजीनियर है, वो नाइबे पैगंबर कहाँ है? वो उल्टा पुल्टा काम जब से होना शुरू हुआ, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान कंफ्यूजन में पड़े हुए, क्या करें, इसको माने कि उसको माने, इसकी बात सुने कि उसकी बात सुने, इसकी माने कि उसकी माने। वो इंजीनियर ये बोल रहा है, वो डॉक्टर ये बोल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या इंजीनियर की पैरवी करने का पैगाम इस्लाम ने तुझको दिया है? क्या डॉक्टर की पैरवी का पैगाम तुझको इस्लाम ने दिया? इस्लाम ने कहा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा है। ये उलमा नाइबे पैगंबर है, ये उलमा आलिमे हदीस है। तो इंजीनियर और डॉक्टर के पीछे क्यों पागल होता है? अगर तुझे जाना है तो आलिम के पीछे जा, आलिम रब्बानी के पीछे जा। उलमा में जो बदअखलाक है उनको छोड़ दे। एक उलमा का सरदार इमाम अहमद रजा का फाज़िले बरेलवी है। इश्क चाहिए वहां आ जा, मोहब्बत चाहिए वहां आ जा, इसलिए फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी चाहिए वहां आ जा। इमाम अहमद रजा के पास आ जा, डॉक्टर से बेनियाज हो जाएगा, इंजीनियर से बेनियाज हो जाएगा। कोई कहते हैं कि साहब डॉक्टर साहब ने ये कहा, इंजीनियर साहब ने ये कहा। मैंने कहा इंजीनियर और डॉक्टर की बात मत बोल, ये बोलो कि इमाम साहब ने क्या कहा, मौलाना साहब ने क्या कहा, हदीस कुरान के जानकार ने क्या कहा। ये फितना इसीलिए पैदा हुआ हिंदुस्तान में। ये साहब फला के फॉलोवर हैं, ये फला डॉक्टर के फॉलोवर हैं, ये साहब फला डॉक्टर नाइक साहब के फॉलोवर हैं। डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने डॉक्टरी की तालीम हासिल की है, उन्होंने उर्दू जबान में इस्लाम सीखा है। ये हमारे उलमा हैं जो इस्लाम की
کی جو پیاری زبان عربی زبان ہے اس سے اسلام سیکھا ہے. حدیث کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, فقہ کی زبان عربی, قبر کی زبان عربی, مصطفیٰ کی زبان عربی, جنتوں کی زبان عربی. وہی حقیقی معنی میں عالم ہوگا جو جنتی زبان کا جانکار ہوگا. عربی زبان جانتے ہیں علماء, فتنوں سے بچ جائیں گے آپ. اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کی بات سننا چھوڑ دیا, ڈاکٹر کے پاس جائیں, پیٹ میں درد ہو تو اس کے پاس جائیں, سر میں درد ہو تو اس کے پاس جائیں, پیر ٹوٹ جائے تو سرجن کے پاس جائیں, عالم صاحب کے پاس نہ جائیں. پیر ٹوٹے سرجن کے پاس جائیں, سر پھٹے سرجن کے پاس جائیں. اپنی بیوی کو لے جانا ہو, سیزرین کروانا ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن جہاں نماز, روزے, حج و زکات کے مسائل سیکھنا ہو ان علماء کرام سے رابطہ کریں. تصوف سیکھنا ہو ان علماء کرام سے رابطہ کریں. حدیث پاک کا صحیح مفہوم جاننا ہو ان علماء سے رابطہ کریں. علماء نائب پیغمبر ہے. جب تک میری قوم عالموں سے جڑی تھی, عالموں سے اس کے سمپرک میں تھی, مذہبی طور پر اسٹرانگ تھی, ان کا دل دماغ کنفیوژن سے پاک تھا. جب سے پتہ نہیں کس ڈائن اور قاتل کی نظر لگ گئی, عالموں کی غیبت چائے کی دکان پہ, عالموں کی غیبت پان کی دکان پہ, عالموں کی غیبت مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد, عالموں کی غیبت درگاہوں میں, عالموں کی غیبت اجمیر کی مزامروں کی محفل میں, عالم کی غیبت خانقاہوں میں. جب سے علماء کی غیبت شروع ہوئی تب سے ہماری قوم منتشر الخیال ہو گئی, مختلف الخیال ہو گئی, لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے. اس کی معنی کہ اس کی معنی. عالموں کی محبت جب دل میں رہتی ہے تو بس یکگیر محکم درگیر. میں نے اپنے عالم سے سنا ہے, انہوں نے سرکار کے تعلق سے یہ حدیث سنائی ہے, ڈاکٹر انجینئر کے پاس جائیں گے سڑک کا نقشہ لے کر, اپنے پیشنٹ کو لے کر, دینی مسئلہ ان نائبین پیغمبر کے پاس لے کے جائیں گے. اور جب تک یہ بات تھی, محبت تھی, عقیدت تھی, فتنہ کم تھا. لیکن جب سے محبت گھٹ گئی, فتنہ پیدا ہو گیا سماج میں. اب ایک مسجد میں 50 طرح کے لوگ آتے ہیں, انتشار رہتا ہے عالموں سے محبت کرنا. حضور نے کہا تھا, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. اسے آپ اس کو پیسے سے مت آ کہیں 10,000 کمانے والا ہے, 5,000 کمانے والا ہے, نہیں, اس حیثیت سے آ کہیں کہ کشمیر میں ایک شخص کے پاس 1,000 بیگہ زمین ہے, اس نے اپنے بیٹے کو آکسفورڈ بھیج کے بیرسٹر بننے کی ڈگری وہاں سے اپنے بچے کو دلوا دی ہے, بیرسٹر بن کے وہ آیا ہے. لیکن جب جمعہ کا دن ہوتا ہے, ممبر پہ اس کے ہاں کام کرنے والا مزدور اس کا بچہ امامہ باندھ کر ہاتھ میں عصا لے کر ممبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جرنل اپنی قوم کو للکار رہا ہو, جیسے کوئی بادشاہ قوم کو خطاب کر رہا ہو. اگر وہ 1,000 سال تک زندہ رہتا مزدور کا بچہ تو پھر بھی اس زمیندار کا مقابلہ نہیں کر پاتا. لیکن یہ کون سا علم ہے جو اسے بیرسٹر کو نیچے رکھوایا ہے؟ اس کا مزدوری کرنے والے کا بیٹا بریلی پڑھنے گیا, وہاں سے عالم بن کے آیا ہے, اور وہ امامہ باندھ کر ممبر پہ سب کا سرتاج بنا ہوا ہے. بیرسٹر نیچے ہے, بیرسٹر کے والد نیچے ہے, اور ممبر پہ غریب کا بچہ جو عالم ربانی ہے وہ ہے. کون ہے جو اس غریب کو بیرسٹر کا سردار بنایا؟ کون ہے جو اس غریب کو زمینداروں کا سردار بنایا؟ یا علم مصطفیٰ ہے جو ایک غریب کے بچے کو ممبر پہ چڑھا کے عزت کا تاج پہنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محبت رسول کانفرنس. عالم نفرت کرنے کی چیز نہیں ہے, عالم محبت کرنے کی چیز ہے. ان سے دوریاں نہیں, ان سے نزدیکیاں بڑھانے کی چیز ہے. ان کے پاس 1 منٹ رہنا ایسا ہے جیسے پیغمبر اعظم کی صحبت میں کوئی بندہ رہ رہا ہو. کیونکہ نائب پیغمبر جب سے دوریاں بڑھی تب سے میری زبان میں غیبت جاری ہو گئی, دماغ میں برے وسوسات پیدا ہو گئے, ہمارے گھر میں لادینیت آ گئی, ہمارے گھر میں سیکولرزم آ گیا, ہمارے گھر میں مغربیت کی آندھی آئی, بچے سارے بگڑ گئے, سب کا ذہن خراب ہو گیا. آج ضرورت ہے علماء سے قریب ہونے کی, آج ضرورت ہے جلس و جلوس سے قریب ہونے کی, آج ضرورت ہے سرکار دو جہاں کی محبت سے قریب ہونے کی. ورنہ اس سے اگر دور ہوئے تو یقین جانے کہ آپ کی سوچ تباہ ہو جائے گی, آپ کی فکر تباہ ہو جائے گی, اور آپ نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. بس بات میری چلی تھی کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے تعلق سے کہ آج دھیرے دھیرے دنیا میں اس طرح ان کے فالوورز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, چونکہ یہ تحقیق کی دنیا ہے, یہ جستجو کی دنیا ہے, یہ ریسرچ کی دنیا ہے. میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں, پھر اس کے بعد سرکار کی محبت کے حوالے سے میں کچھ بات کرتا ہوں. تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک ہے. بینکاک سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, گھومنا چاہتے ہیں. میں بینکاک جاؤں, تھائی لینڈ جاؤں, ملیشیا, سنگاپور جاؤں. آج کل لوگوں کو گھومنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا ہے.
बिहार के लोग कश्मीर घूमना चाहते हैं, कश्मीर के लोग वो साहब मसूरी नैनीताल देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। घूमने का कल्चर शुरू हो गया है, यानी बाहर घूमना, अपनी बीवी बच्चों के साथ घूमना। पहले लोग सालों साल घूमते नहीं थे, मस्जिद घर मस्जिद घर मस्जिद घर, खेत दुकान, और आजकल चूंकि पैसों की फरावानी हो गई है, लोग आराम की तलाश में, रिलैक्स फील करने के लिए, गम भुलाने के लिए, टेंशन खत्म करने के लिए लोग घूमने का कल्चर शुरू किया है। इसी को कहते हैं सियाहत, इसी को कहते हैं टूरिज्म, यानी घूमना, सैर व सियाहत करना, सैर सपाटा करना। और यहाँ बाहर आए हैं, जब डल झील में आप जाके देखेंगे, एक नया जोड़ा है जो कश्ती पे बैठा हुआ है और उसका आनंद ले रहा है, यहाँ दूसरों के सामने आनंद ले रहा है, और घर में जाने के बाद फिर वहां लत्तम जुत्तम शुरू है, वहां मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा शुरू है। यहाँ बाहर में नुमाइश है और अंदर उजड़ा हुआ है, घर सारा उजड़ा हुआ है। अभी एक साल पहले, इस कोरोना काल से एक साल पहले हमारे बिहार की राजधानी पटना का एक अरबपति अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ फॉरेन घूमने गया था, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया। हम लोग गरीब हैं, लेकिन जो लोग पैसे वाले हैं वो हिंदुस्तान में कश्मीर क्या घूमेंगे, वो फ्रांस जा जाते हैं, वो साहब पेरिस घूमना चाहते हैं, वो वाशिंगटन डीसी जाना चाहते हैं, वो जर्मनी, नॉर्वे, कनाडा घूमना चाहते हैं। पैसे वाले वो अपनी फैमिली को लेके बाहर से घूम के घर आए थे, तो बड़ा रिलैक्स मिला था, एक साल तक चैन से रहना चाहिए था। लेकिन एक हफ्ते के अंदर उसके घर से 5 डेड बॉडी निकली, यानी जो अपनी बीवी बच्चों को लेकर घूमने गए थे, सुकून की तलाश में गए थे। मैंने कल तकरीर के आखिरी हिस्से में कहा था, इस्लाम वक्त की जरूरत का नाम है, सरकार की सीरत का मुताला करना होगा, वरना अपने नफ्स की गुलामी आपने किया, ये नफ्स तबाह करके रख देगा। आज सारी दुनिया सुकून की तलाश में अपने घर को फर्नीचर से आरास्ता कर रही है, दुनिया सुकून की तलाश में करोड़ों का बंगला बना रही है, दुनिया सुकून की तलाश में शोहरत हासिल करने के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब का इस्तेमाल कर रही है। मैंने कल मिसाल दिया था कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा फिल्म स्टार यानी चार्ली चैपलिन, जो सबसे बड़ा मालदार, करोड़ों जिसके फैंस, मगर वह जी भर के रोना चाहता है बारिश में। क्यों? हिंदुस्तान की करोड़पति, शोहरत की मलका, दौलतों के अंबार पे बैठने वाली, वो कहती है आई लाइक टू लिव दिस वर्ल्ड, मैं दुनिया छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? वो कहती है माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड, मेरा सपना साकार नहीं हुआ। जिसे भारत रत्न का अवार्ड मिला हो, जिसे पद्म भूषण अवार्ड मिला हो, जो पार्लियामेंट में बैठकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नगमा अलापी हो, जिसको प्रधानमंत्री जिसके रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो जाते हो, यानी वो लता मंगेशकर जी के घर में सुकून नहीं है। वो कहती मैं मरना चाहती हूँ, मैं जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। अब पूछे कि क्या चाहती थी वो? लोग मकान चाहते हैं, मकान था, लोग कीमती करोड़ों की गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मौजूद थी, लोग 100 ममालिक का भ्रमण चाहते हैं, 100 ममालिक का भ्रमण उन्होंने वो कर चुकी है। वो बड़े बड़े मार्केट में शॉपिंग करना चाहती है, वो वहां 7 डायमंड और ज्वेलरीज खरीदी है। आखिर क्या नहीं है उसके पास? जेवरात उसके पास, मकान उसके पास, और किसी के पास घर हो दिल्ली में, वो चाहता है बंबई में घर हो जाए, क्योंकि दिल्ली पॉलिटिकल राजधानी है और बंबई सनअती राजधानी है। राजधानी का पहुंच इलाका हाजी अली के किनारे पीडर रोड पे, जहां हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिचेस्ट मैन का बंगला है, उसी एरिया में उसका मकान है। हिंदुस्तान के सारे इलाके के लोग उस इलाके में घर बनाना चाहते हैं, जहां खरबों रुपए हो तो आदमी घर बनाएगा, लेकिन जिसका वहां घर मौजूद हो, यानी दौलत मौजूद है, फिर भी वो कहती है मेरा सपना साकार नहीं हुआ, माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड, मैं जो चाहती थी मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। यानी वो चाहती थी तमानियत तलबी, वो चाहती थी सुकून, वो चाहती थी कि सच्ची खुशी, वो चाहती थी जिंदगी का मजा। जब वहां चार्ली चैपलिन को नहीं है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं है, मुकेश अंबानी को नहीं है, तो सुकून है कहां? चैन है कहां? चैन महल में नहीं तो चैन कहां है? कुरान कहता है चैन ढूंढता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जहां लेके चैन तो अल्लाह की याद में है, चैन तो अल्लाह के जिक्र में है। बहनों में जहां नबी से हट की जिंदगी हो, वह आग लगी है जिंदगी में, और जहां किराए के मकान में इबादत है, तिलावत है, जिक्र है, दरूद है, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी है, वह झोपड़ी बादशाहों के लिए काबिल रश्क बनी हुई है। सच्चा सुकून अल्लाह उसे देता है जिसकी मुलाकात के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुकून अल्लाह की याद में। इससे हट के बंगला में हम तो 100 साल तक उतना बड़ा बंगला बना ना पाए जितना बड़ा बंगला मुकेश अंबानी के पास है। हम उतनी बड़ी कीमती कार खरीद ना पाए जितनी कीमती कार लता मंगेशकर के पास मौजूद थी। तो फिर नमाजें छोड़ के पैसा कमाना, रोजा छोड़ के पैसा कमाना, ज़कात में ताकीर करके पैसा कमाना, और अल्लाह रसूल को छोड़ करके एक छोटी सी बिल्डिंग, एक छोटी सी गाड़ी और छोटा सा फिक्स डिपॉजिट कर लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल यही है कि आदमी को सुकून चाहिए, जो सुकून सब्र में है, जो सुकून कनात में है, जो सुकून तवक्कुल में है, जो सुकून इस्तिग़ना में है, जो सुकून बेनियाजी में है, साफ लफ्ज़ों में जो सुकून मुस्तफा की मोहब्बत में है, इससे हट के नहीं है। अगर सुकून चाहिए, मोहब्बत रसूल की खैरात सीने में ले ले, अगर तेरा किराए के घर में क्यों ना रहे, अल्लाह बादशाह जैसा सुकून अल्लाह तेरे दिल में अता फरमा देगा। यही पैगाम ये कॉन्फ्रेंस देती है, यही पैगाम उलमा देते हैं, यही पैगाम हमारे मशाइख देते हैं। दौलतों के अंबार में खोई हुई दुनिया यह सुकून तलाश कर रही है। 1 दर्जन बीमारियों में घिर गई दुनिया, टेंशन में घिर गई दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुकाबला करने चले हैं लोग। जिस रब ने जमीन पैदा की, जिस रब ने आसमान बनाया, जिस रब ने मुझे पैदा किया, उस रब से मुकाबला करने लोग चले हैं। ऐसा नहीं होगा। हम इंसान हैं, हम कमजोर पैदा हुए हैं, हमें अपनी हद में रहना होगा, हद से बाहर कभी नहीं। घमंड और गुरूर में नहीं जिए, घमंड और गुरूर तबाह कर देगा, चाहे दूसरे ममालिक के लोग हों या हमारे मुल्क के लोग हों, गुरूर तबाह कर देगा। मेरे पैगंबर ने कहा है, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र। वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके सीने में राई के बराबर घमंड होगा। राई के बराबर घमंड हो, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। मेरा कुरान कहता है अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। और यहाँ ना अहली और अकल के छीनने की वजह से एक छोटा सा घर बनाया, अब वह फिरौन का दादा बना बैठा है। कोई एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली, अब वह नमरूद का नाना बना बैठा है। किसी को गवर्नमेंट की नौकरी छोटी सी मिल गई, अब वह हमान और शद्दाद का परदादा बना बैठा है। एक बुलेट खरीद लिया, अब वह सीना तान के चलता जैसे बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का यह मालिक बना बैठा है। यानी छोटी सी गाड़ी मुझे मगरूर बना देती है, छोटी सी नौकरी मुझको मगरूर बना देती है। आज ये घमंड ने कुर्सी वालों को आज मगरूर बनाया, तो वह मानवता के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आदियत की तस्वीर की बातें कर रहे हैं। यह कुर्सी आज है कल खत्म हो जाएगी, ये आज जवानी है कल खत्म हो जाएगी, यह दौलत आज है कल खत्म हो जाएगी। मानवता, मानव हो तो मानवता को अपने साथ रखो, गुरूर को अपने करीब न आने दे। गुरूर ने स्कूल का चैन छीन लिया, गुरूर ने मुअज्जिन और इमाम के दरमियान की मोहब्बत को छीन लिया, गुरूर ने आज एक इदारों की तंजीम को छीन लिया, गुरूर ने उलमा मशाइख के दरमियान की दूरियां बढ़ा दी, गुरूर ने एक मदरसे के 10 मुदर्रिसीन को एक दूसरे को सलाम करने से रोक दिया। मैं शेखुल हदीस हूँ, वो मुझको सलाम करेगा। वह बोलता मैं फारसी की पहली पढ़ाने वाला मुंशी हूँ, मैं 5 घंटे पढ़ाता हूँ, 10,000 महीना कमाता हूँ, मैं तुमको क्यों सलाम करूँ? तुम शेखुल हदीस है, 50,000 महीना कमाता है, रहो अपनी जगह, मैं क्यों करूँ? वो भी घमंड का पुतला, ये भी घमंड का पुतला। नतीजे में सारी जिंदगी नफरतों में गुजर जाती है। एक इमाम मुअज्जिन, मैं मुअज्जिन हूँ, मैं खाना लाता हूँ मोहल्ले से, मैं मस्जिद की सफाई करता हूँ, मेहनत करता हूँ, 10,000 महीना मुझको मिलते हैं। और तुम इमाम है, जामे अजहर से पढ़ के आया है, तुम इमामत में खुतबा देता है, तेरी तनख्वाह 50,000 महीना है, रहो अपनी जगह, मैं क्यों सलाम करूँ? तुम मैं मेहनत करता हूँ, मैं कमाता खाता हूँ। यानी गुरूर ने मोहब्बत को छीन लिया मस्जिदों से, घमंड ने मदरसों से मोहब्बत को छीन लिया, गुरूर ने हमारी ऑफिसेज, हमारे दफ्तरों से मोहब्बत को छीन लिया। अब लोग गुरूर का पुतला बने बैठे हैं। ईद के दिन कोई किसी को सलाम करने नहीं जा रहा, कोई किसी से हाथ नहीं मिलाता। मैं कम हूं क्या? वो सलाम करेगा, वो सलाम मुझको करेगा, वो मुझको मेरे पास आएगा, वो मुझसे मिलेगा। मैं कहता हूं मैं क्या कम हूं क्या? मैं उसके पास जाऊं, वो मुझसे मिलेगा, ना वो आएगा ना मैं जाऊंगा, दोनों भैंस बन के अपने घर में बैठा रहेगा, ऐसी नफरत में मर जाएगा। हुजूर ने कहा था ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनू, जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि मुसलमान न बन जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। यानी मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है, मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है। और इमाम मुअज्जिन में मोहब्बत जरूरी है, मुदर्रिसीन में मोहब्बत जरूरी है, समाज में 100 लोग हैं, सब में मोहब्बत जरूरी है। अपने ईमान की खैर के लिए मोहब्बत जरूरी है। 1000 नफ्स बोले सलाम नहीं करना है, अपने ईमान के तहफ्फुज के लिए मोहब्बत जरूरी है। पीठ में खंजर नहीं भोंकना, मोहब्बत जरूरी है। हुजूर ने कहा ला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। यानी यू विल नॉट बी कंप्लीट
complete believer until you love one another. जब तक एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेगा कंप्लीट मोमिन नहीं बन सकता। ये बुखारी शरीफ में भी ये हदीस है और मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में भी ये हदीस है। मोमिन कामिल नहीं बनेगा जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। खूब डफली बजाने कि मेरे पास 100 बीघा जमीन है, मेरे पास 50 करोड़ का बंगला है, मेरे पास कार है, सब कुछ हो सकता है। ईमान उसी वक्त रहेगा जब तक कि दिल में प्यार रहेगा, एक दूसरे से मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत करना होगा। अब हुजूर कहते हैं मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूं। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतमुहु तहाबबतुम अफशुस सलाम बैनकुम। मुस्तफा कहते हैं एक नुस्खा मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने उस पर अमल किया तो फिर तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो आपस में तेरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आका कहते हैं बस एक काम करना, आपस में सलाम को खूब फैला दो। अफशुस सलाम बैनकुम, इंतजार मत करना, मैं शेखुल हदीस हूं, ये चपरासी है मदरसे का, ये सलाम मुझको करेगा। इंतजार मत करना, मैं पीर हूं, ये मुरीद है, ये सलाम मुझको करेगा। इंतजार मत करना, मैं शौहर हूं, ये बीवी है, ये सलाम मुझको करेगी। इंतजार मत करना, मैं जमींदार हूं, ये मजदूर है, ये सलाम मुझको करेगा। जहां इंसान होने के नाते ये ख्याल दिमाग में आ जाए मैं कुछ हूं, ये कमजोर सलाम करेगा, वहां हुजूर की सीरत सामने रख लेना कि आकाए दो जहां नाइबे पैगंबर है, नाइबे परवरदिगार है, सरकारे दो जहां मालिक व मुख्तार है, जन्नत व जहन्नम के मालिक है। आका अपने घर में जाते अपनी बीवियों को सलाम में पहल करते थे, सरकार रास्ते से गुजरते अपने सहाबा को सलाम करते थे, अपने सहाबा को आगे बढ़ा देते और हुजूर से जब मुलाकात होती सरकार सलाम में पहल फरमाते। तिरमिजी शरीफ में आप मुताला करें सरकार की सीरत के हवाले से, आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को सलाम में पहल फरमाते थे। अपने नफ्स की बात मानेगा सारी जिंदगी भैंस बन के बैठेगा, और जहां बीच में सरकार आ गए, हुजूर की सीरत आ गई तो सारा गुरूर मिटेगा, मोहब्बत का खजाना मिलेगा। हुजूर से हट के अगर जिया तो जिंदगी नफरतों की आमाजगाह बन जाएगी। सरकारें दो जहां सामने आ गए, मोहब्बत की तस्वीर बन जाएगा, नफरतें मिटेंगी, अदावत मिटेगी, मोहब्बत का खजाना मिलेगा। मोहब्बत के लिए सलाम जरूरी है, मोहब्बत के लिए एक दूसरे की कद्र जरूरी है, मोहब्बत के लिए एक दूसरे का सम्मान जरूरी है। तो मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत आपस में जरूरी है, और मोहब्बत के लिए दूसरों की खैर खाही जरूरी है, वेल विशिंग जरूरी है, दूसरों का शुभ चिंतन जरूरी है। यानी मैं जो चाहता हूं अपने लिए वही दूसरों के लिए पसंद करना होगा। मैं जब मिलूं तो वह सलाम करे, वह जब मिले तो सलाम में पहल करे। मैं जब मिलूं तो कुर्सी लेके आए, वह जब आए तो आप भी कुर्सी लेके जाए। यानी पहल जरूरी है मोहब्बत के लिए। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। तुम में से कोई मोमिन कामिल नहीं बनेगा जब तक कि अपने भाई के लिए वह चीज पसंद ना करो जो चीज अपने लिए पसंद करता है। आज नफरतों में डूबा समाज, ये सिर्फ इसी पॉइंट पे गौर कर ले कि जो आज बकवास कर रहा है पैगंबर आज़म के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम तो सरापा मजहब रहमत का नाम है, इस्लाम तो दीन फितरत का नाम है, इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देने वाला मजहब है। इस्लाम ने तो आखिरी बात कह दी कि जो चूटी को बिला कसूर मसल दे उसके बारे में भी कयामत में उसे जवाब देना होगा कि तुमने एक चूटी को क्यों मसल दिया। इस्लाम ने तो आखिरी बात कह दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुंबा है सारा इंसान, यानी ये इंसान अन्नास कुल्लुहुम अयालुल्लाह, ये लोग अल्लाह का परिवार कुंबा है। खैरुकुम खैरुल लिअयालिही, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के कुंबे के लिए बेहतर हो, यानी अल्लाह के कुंबे के लिए बेहतर हो। इस्लाम ने हमें सारा कानून खोल खोल के बताया है, ज़कात किसको देना है, फितरा किसको देना है, फर्ज खैरात किसको देनी है। और अगर ट्रेन पे कोई भिखारी आ जाए जिसका हाथ टूटा हो, जिसका पाँव नहीं हो, जो भूखा हो, वहां मजहब नहीं पूछा जाएगा कि तू कौन है, वहां से मजबूर देखा जाए, उसकी मदद की जाएगी, पानी पिलाया जाएगा, उसको खाना दिया जाएगा। ये तो दूसरे लोग जालिम हैं जो नाम पूछ के पानी देते हैं, जो नाम पूछ कर अगर नाम कोई दूसरा मोहम्मद बताया तो फिर उसको तमाचा से मारने लगते हैं। उन लुच्चों की कोई हैसियत नहीं है, उन लफंगों की कोई हैसियत नहीं है, उन कुत्तों की कोई हैसियत नहीं है जिसके सीने में मानवता नहीं, जिसके सीने में ह्यूमैनिटी नहीं, जिसके सीने में आदमियत नहीं। उसे मैं इंसान क्या समझूं, उसे हिंदुस्तानी क्या जानूं, मैं उसे आदमी मानने को तैयार नहीं हूं। उसे मैं और दूसरा लक़ब क्या दूं। आदमी वही है जो आदमियत की कदर करता हो।
आदमी वही है जो आदमियत की कदर करता हो। मेरा मजहब क्या कहता है तुम्हें मालूम है? मजहब मेरा बाबर से नहीं है, मेरा मजहब हुमायूं से नहीं है, मेरा मजहब अकबर से नहीं है। मेरे मजहब को समझने के लिए बाबर को मत पढ़ना, मेरे मजहब को समझने के लिए अकबर को मत पढ़ना। बाबर एक बादशाह था, बादशाह शराबी भी होते हैं, बादशाह बदकार भी होते हैं, बादशाह होते हैं। इस्लाम को समझने के लिए अकबर का नाम मत ले, इस्लाम समझने के लिए बाबर का नाम मत ले। इस्लाम समझना है तो कुरान पर मुस्तफा की हदीस पढ़ लिया कर कि हदीस में क्या आया है, कुरान में क्या आया है। जब कुरान हदीस जिस दिन पढ़ेगा, जिस दिन हमारे बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करेगा, याद रख आज तू दुश्मनी में आया है, कल उमर फारूक आजम की खैरात अगर तुझको मिल गई तो दुश्मनी करता हुआ आएगा, कलमा पढ़ता हुआ वापस होगा। इस्लाम समझने के लिए या रसूल अल्लाह। बस चमड़ी की जबान है, जो मुंह में आया बोल दिया। चमड़ी की जबान है, जो मुंह में आया सब बक दिया। नफरतों की खेती नहीं चलती है। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, जब बहता है तो जम जाता है। मेरे नजदीक 14 साल की कोई हैसियत नहीं है, हमारे नजदीक 25 साल की कोई हैसियत नहीं है, हमारे नजदीक 50 साल की कोई हैसियत नहीं है। मैंने तो कुरान करीम की वो तारीख पढ़ी है, अल्लाह ताला एक बंदे को लंबी उम्र दी, 400 साल की लंबी उम्र दे दी, 400 साल की लंबी उम्र दे दी। कहां 40 साल, कहां 400 साल। अभी हिंदुस्तान की आजादी के 150 साल हो रहे हैं, अंग्रेजों हिंदुस्तान की आजादी के 80 साल हो रहे हैं। अंग्रेजों ने 150 साल तक कब्जा किया, वह 150 साल, ये 80 साल दोनों को जोड़ दें तो 200 कुछ साल हुए हैं। और हिंदुस्तान में इससे पहले क्या था वह सबों को मालूम है। और हमारे नजदीक 400 साल 1 मिनट है, 400 साल 1 सेकंड है, क्योंकि मेरा कुरान कहता है अल्लाह ने एक बंदा को लंबी उम्र दी थी, 400 साल की उम्र दी थी। मिस्र का हाकिम बनाया था, वह मजदूर का बच्चा मिस्र का हाकिम बना, लंबी उम्र से धोखा खा गया, सेहत और तंदुरुस्ती से धोखा खा गया। धोखा जब खाया यानी वह अपने लंबे कद से धोखा खा गया, वह अपने इतने इंच सीने से धोखा खा गया, वह 400 साल की लंबी उम्र से धोखा खा गया। फिर उन्होंने दूसरों से सजदा करवाना शुरू किया, लाखों को कत्ल करना शुरू किया। अल्लाह ने छूट दी, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा उसे बीच दरिया में तपा के मार दिया। जब फिरौन डूबने लगा, कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं ईमान लाया उस अल्लाह पर जिस पर बनी इसराइल के लोग ईमान लाए। वह बनी इसराइल को ज़बह करता था, बनी इसराइल को गुलाम बना के रखा था, बनी इसराइल से सजदा करवाता था। अब जब घिघिया मरने लगा, जब पानी में डूबने लगा तो बोला अब मैं ईमान लाता हूं जिस पर बनी इसराइल ने ईमान लाया है। अल्लाह ने कहा अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। फलयौमा नुनज्जीका बेबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि जो लोग तेरे पास आए वह जान जाए कि मगरूर का अंजाम क्या होता है, घमंडी का अंजाम क्या होता है। मेरे सामने वह कानून किस्सा मौजूद है। नमरूद मजदूर का बच्चा था, अल्लाह ने दुनिया का हाकिम बनाया, लेकिन जब दिमाग में कीड़ा काटा, लोगों से सजदा करवाना शुरू किया, अल्लाह ने मामूली मच्छर को भेजकर उस मगरूर का तमाशा दुनिया वालों को दिखला दिया। मेरा खुदा वो है जो दुनिया भर का हाकिम बनाना भी जानता है, मामूली मच्छर से हिलाक करना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो फिरौन को मिस्र का हाकिम बनाना भी जानता है, 400 साल की लंबी उम्र देना भी जानता है, और पानी में डुबा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो अबू जहल को कुरैश का सरदार बनाना भी जानता है, और जब वो नबी के कत्ल का प्लान बनाए, मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों जिल्लत की मौत मारना भी जानता है। इसलिए हमें इत्मीनान है जो रब नमरूद को ना छोड़ा, फिरौन को ना छोड़ा, शद्दाद को ना छोड़ा, अबू जहल को ना छोड़ा, वह मेरा खुदा आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा, आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, आज के शद्दाद को भी नहीं छोड़ेगा। इस्लाम आलमगीर मोहम्मद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उस मजहब मुहज़्ज़ब से रिश्ता अपना मजबूत कर लीजिए। कुरान करीम सारे मसाइल का हल देता है, तमाम कंफ्यूजन का इलाज करता है, तमाम डिसअपॉइंटमेंट का इलाज देता है, तमाम महरूमियत का शानदार इलाज कुरान बताता है। कोई हो तो कुरान पढ़ने वाला, कोई हो तो सरकार की हदीस पढ़ने वाला, कोई हो तो औलिया सालिहीन की जिंदगी का मुताला करने वाला। जब किसी हिटलर का नहीं चला, जब किसी मसूलिनी का नहीं चला, जब किसी तानाशाह का नहीं चला, तो आज के तानाशाह का भी नहीं चलेगा। चलेगा मेरे खुदा का, चलेगा मेरे मुस्तफा का, चलेगा मेरे रब का। उस रब की रस्सी मजबूती से थाम ले तो कल अगर तेरी औलाद जिंदा रही, वो औलाद तमाशा देखेगी कि इनका प्लान पूरा हुआ या मेरे रब का प्लान पूरा हुआ या मेरे मुस्तफा का प्लान पूरा हुआ। वह हो के रहेगा जो रब ने चाहा है, वह हो के रहेगा जो मुस्तफा ने पेशन गोई की है। जो कुछ सरकार ने कहा, हुजूर ने कहा है, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मज़यम वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रोए जमीन का कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। मैं वही बोलता हूं जो मेरा रब कहता है, मैं वही बोल रहा हूं जो मेरे मुस्तफा कहते हैं। अब रब की बोली किसी को ना पसंद लगे तो मैं क्या कर सकता हूं। मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, कराने पर भी पाबंदी है, मेरे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मैं सांस भी नहीं लूं, मैं कराहूं भी नहीं, मैं दिल का दर्द खोल के नहीं बयान करूं, मैं अपने मजहब को भी नहीं समझा सकूं, तो फिर क्या है। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है जिस जिंदगी में करा ना सकूं, जिस जिंदगी में मैं अपना दर्द बयान ना कर सकूं। कोई सुने ना सुने, मेरा रब तो सुन रहा है, इसलिए रब उसके रिश्ता मजबूत कर ले, मुस्तफा से रिश्ता मजबूत कर ले। और जिस दिन रब सुनेगा फिर किसी की नहीं चलेगा, रब का चलेगा। और जो रब की रस्सी को मजबूती से थामेगा अल्लाह उसे इज्जतों से मालामाल कर देगा। मेरा खुदा हक है, मेरा मजहब हक है। बातें बहुत तवील मेरी ना हो जाए, बीच बीच में एक जुमला मोतरजा के तौर पर एक जुमला आ गया, मैंने आप तक पहुंचा दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यह अक्लमंदी की दुनिया है, यह तहकीक की दुनिया है, यह इन्वेस्टिगेशन की दुनिया है, यह रिसर्च की दुनिया है। इस दुनिया में मजहब इस्लाम किस तरह पूरी दुनिया में अक्लमंदों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है, इस पर गौर से सुनिएगा। थाईलैंड की राजधानी, ये घूमने की बात चली थी, ये घूमने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। अल्लाह तौफीक दे तो कभी घूम के इबरत की खातिर घूमना चाहिए, रिलैक्स की खातिर नहीं। एंजॉय करेंगे, मसरत का इजहार करेंगे, नहीं नहीं, इबरत की खातिर। फसीरू फिल अर्द, जमीन में सैरो सियाहत करो मगर इबरत की खातिर। फनजुरू, देखो ज़ालिमों का अंजाम क्या हुआ, जिसने जुल्म किया उसका अंजाम क्या हुआ। उनके महलात को देख ले, उनके खंडरात को देख ले, उनकी सुनी बस्तियों को देख ले, उनके जुल्म सितम की कहानी रह गई, बस्तियां उजड़ गई। इस्लाम में घूमने का, टूरिज्म का यही मफहूम है कि घूमना है इबरत की खातिर, आंख खोलने के लिए, सबक हासिल करने के लिए। यानी घूमो, देखो, सबक हासिल करो और मनाज़िर फितरत को देखो। और जहां देखो कि यहाँ नेमतें ज्यादा हैं वहां सजदा कर लिया करो, अपने रब की नेमत का शुक्र अदा कर लिया करो। जब कश्मीर जाओ, डल झील के किनारे, क्या नेमत है खुदा की। इस बीच शहर के बीचों बीच इस कदर इतनी बड़ी झील, तो झील के किनारे मुसल्ला बिछा के दो रकात नमाज पढ़ो। इलाही तेरा करोड़ों एहसान। अभी अप्रैल मई जून में बिहार की राजधानी पटना में बदन जलता है और यहाँ कंबल ओढ़ के सोता हूँ, यहाँ सजदा बहा देना चाहिए। जब कोई गुलमर्ग जाए जहाँ बर्फ गिरी हुई देखे इस अप्रैल मई जून में, तो इलाही वहां नीचे आग लग रही है बदन में और यहाँ बर्फ गिर रही है, क्या तेरी कुदरत है, कितनी बड़ी नेमत है। यहाँ जब नेमत मिले तो सजदा करना चाहिए और जहाँ उजड़ी हुई बस्तियां मिले तेजी से गुजर जाना चाहिए, क्योंकि वहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। जहाँ बेहयाइयां होती है, जहाँ जिनाकारी होती है, जहाँ शराब नोशी होती है, जहाँ लोग खूब धड़ल्ले से मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वक्त आसमान से आग बरस सकती है, किसी भी वक्त जमीन से आग निकल सकती है, किसी भी वक्त आसमान से पत्थर बरस सकता है। जहां शराबियों की तादाद में इजाफा हो उस बस्ती में अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब कभी भी आ सकता है। जहां हर घर में ज़िनाकार मौजूद रहे उस बस्ती में कभी भी आसमान से आग बरस सकती है। इसलिए अपना नेक रहना कमाल नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को नेक बनाना भी कमाल है। इसलिए अगर समाज का चौधरी मंशियात पे पाबंदी न लगाए, समाज का चौधरी अगर ज़िना पे पाबंदी न लगाए, खुद वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में पावर है, वह सिर्फ बोल के नहीं, वह ताकत का इस्तेमाल करे। आलिमों के मुंह में जबान है, वह जबान का इस्तेमाल करे। अगर नहीं अमर बिल मारूफ किया तो आलिम गिरफ्तार
गिरफ्तार हो जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। आलिम से मसला पूछा गया, अगर इसने हक नहीं बताया इसके मुंह में क़यामत के दिन आग की लगाम लगाई जाएगी। इसलिए आलिम का मनसब है जब भी उससे कोई हक पूछे वो हक बयान करे। जब भी उम्मत फितने में गिरफ्तार हो उस फितने से निकालने का प्रयास करे जबान से। और अगर कोई बादशाह वक्त है वो कुरान पढ़ता है, वो बोल के नहीं रहेगा, उसकी जिम्मेदारी बोलना नहीं, उसकी जिम्मेदारी है हाथ की ताकत का इस्तेमाल करके जालिमों का डेना तोड़ना, मंशियात रोकना, ज़िना को रोकना, समाज में फहाशी को रोकना। जो समाज के चौधरी है, जो समाज के पार्षद है, जो समाज के मुखिया है, जो समाज के प्रधान है, जो समाज के एमएलए हैं, जो समाज के एमपीज हैं, वो हिम्मत दिखलाए इन मसालिम को रोकने के लिए। शराब ने घर उजाड़ दिया, शराब ने हजारों को तलाक दिलवा दी, शराब ने लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा किया, शराब ने सारी प्रॉपर्टी बेचवा दी। शराब उम्मुल खबाइस है, सारे गुनाहों की मां है शराब। शराब की जो बहन है वो अफीम है, वो चरस है, वो गांजा है। जहां भी जिसने भी इसका आदि हुआ, और दौरे जदीद में ड्रग्स चला हुआ है, जो भी ड्रग्स का आदि हुआ उसकी सेहत भी जाएगी, उसका माल भी जाएगा, उसकी दौलत भी जाएगी, उसकी बीवी की आबरू भी जाएगी। क्योंकि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाला मर्द नहीं रह जाता, वह हिजड़ा और नामर्द हो जाता है। मैंने कल बताया था ज़िना को रोकने के जितने भी तदबीर है उसमें एक तदबीर है मर्द का ताकतवर होना, अपने आप को गुनाहों से बचाना, शादी से पहले हैंड प्रैक्टिस से बचाना, शादी से पहले मनशियात से खुद को बचाना, शादी से पहले बदनिगाही से बचाना, गलत गंदे घिनौने मनासिर तस्वीर देखने से अपने आप को बचाना। क्योंकि इन तमाम कामों से नामर्दी पैदा होती है और आज इसी नामर्दी ने ज़िना को बढ़ावा दिया है। फौजी फौज में रहता है ना, पड़ोसी मौज में रहता है। इसे फौजी फौज में है और पड़ोसी मौज में है, जाहिर सी बात आप बीवी के काबिल न रहेंगे। समाज में ज़िना तो होगा, समाज में बदकारी तो होगी, समाज के पड़ोस के लोग बदकारियां तो करेंगे। इसलिए अपने घर को गुनाहों से बचाने के लिए अपनी बीवी को रूटीन देना होगा, न कि एलईडी टीवी दे दिया, हाथ में रिमोट दे दिया और खुद है साहब सिक्किम में और बीवी है यहाँ पुंछ में और वहां से आए हैं साल भर के बाद, अब हाथ में रिमोट भी दे दिया, एलईडी टीवी दे दी। अब खाना है टीवी देखना है, खाना है टीवी देखना है, हाथ में मोबाइल है, गंदी तस्वीरें देखना है, बदन में आग लगेगी फिर क्या होगा? आप सऊदी अरब में ऊंट चरा रहे हो और यहाँ गरम गजा है, यहाँ गरम टीवी है, गरम मनाजिर है, गरम रिमोट है, क्या होगा? यहाँ ज़िनाकारी न होगी तो क्या होगा? यहाँ बदकारी न होगी तो क्या होगा? यहाँ तुम रहो सऊदी अरब में, तेरा पैसा, तेरा घर, तेरी जमीन और तेरी इस्मत फरोशी दूसरा कर रहा है। इस्लाम ने कहा है या तो अपनी बीवी को अपने साथ रख, अगर नहीं रख पाता है, नहीं सलाहियत है तो अपनी बीवी को रूटीन दे दे। फजर की नमाज के बाद 2 घंटा तिलावत करना, जोहर की नमाज के बाद तसव्वुफ की किताब पढ़ना, असर से मगरिब के बीच में 1,00,000 बार दरूद पढ़ना, मगरिब की नमाज के बाद खाना बनाने के बाद सूरह यासीन पढ़ना, सूरह मुल्क पढ़ना, सूरह मुज़म्मिल पढ़ना, सूरह दुखान पढ़ना, जुमा को सूरह कहफ पढ़ना, दलालुल क़रार शरीफ पढ़ना, सुबह से शाम तक की रूटीन दे दे। अगर यह रूटीन दे दिया उसे फुर्सत ही ना मिलेगी अजनबी से बात करने की, उसे फुर्सत ना मिलेगी अजनबी के साथ जाने की, फुर्सत ना मिलेगी टेलीविजन देखने की। अगर तुमने उसको दीन नहीं दिया या तो अपने साथ रख, अगर तुमने ये रूटीन दे दी तो आएगा 10 साल के बाद दलाइल क़रार शरीफ के बरकत से तेरी इज्जत बचेगी, कुरान की तिलावत की बदौलत तेरी इज्जत बचेगी। तू 10 साल के बाद भी आ जाए तेरे घर में दीनदारी रहेगी, तेरे घर में तकवा का माहौल पैदा। यही एक तरीका है घर को बचाने का, वरना वही तो मैं कहता हूं रहो बाहर में, यहाँ इज्जत आबरू सब नीलाम हो जाएगी और तू समझेगा कि ये लड़का मेरा है और हकीकत बताती है कि तेरा नहीं है। फिर क्या होगा? वलदुस्सना समाज में पैदा होंगे, वो बच्चा लुच्चा होगा, वो लफंगा होगा, वो इमामी वक्त की इज्जत नहीं करेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा करोड़ों हनफियों के इमाम है, वह सामने खड़े हैं अपने 2-4 अहबाब के साथ, सामने चंद बच्चे हैं गेंद खेल रहे हैं, वो बच्चा गेंद खेलता रहा यहां तक कि गेंद इमाम आज़म के सामने जब आया सारे बच्चे सहम गए। इमामी वक्त करोड़ों लोगों के सच्चे इमाम, उनके सामने गेंद है, कुछ बच्चे इधर भाग गए, कुछ बच्चे उधर चले गए, एक बच्चा ढठाई के साथ वह सामने आया और गेंद लेके चला गया। इमाम आज़म ने कन्फर्मली नहीं, चूंकि यहाँ कानून नहीं बोला जाता है, इम्कानात का इजहार होता है, इमाम आज़म ने कहा लगता है इस बच्चे की खमीर में कुछ गड़बड़ी है और इसके नुत्फे
فلسفے میں خرابی ہے، یعنی ولد الزنا ولد الحرام ہے، لگتا ہے ایسا، جب لوگوں نے پتہ لگایا پتہ چلا واقعی یہ ولد الزنا ہے، ولد الحرام ہے، چونکہ جہاں ولد الزنا ہو وہاں بے حیائی، بے شرمی، بڑوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے ناجائز اولاد کی تعداد بڑھے گی وہاں شرم ختم ہو جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ باپ کی چھاتی پہ بچہ چڑھ کے مارے گا، بیلنس چیک پہ سائن کروائے گا، ماں کو تماچا مارے گا، بیوی کی غلامی کرے گا، سسر کو ابا کہے گا، ماں باپ کو بڈھا کہے گا۔ آج سارے لوگ آج گرست ہیں اس مصیبت میں، کہتے ہیں مولانا والدین کی فضیلت پہ خطاب کیجئے۔ میں کہتا ایک دن فضیلت پہ میں خطاب کر دوں گا، کیا اسے تیرا بیٹا سنبھل جائے گا؟ میں فضیلت پہ خطاب تعویذ دے دوں گا، تیرا بیٹا سنبھل جائے گا؟ ہمارے بہار میں آم کا پیڑ ہے، میں اس میں 1,00,000 تعویذ میں ہندوستان کے 1,00,000 عالموں سے لے آتا ہوں اور 1,00,000 تعویذ بندھوا دو کہ آم کے پیڑ سے سیب پھل جائے گا۔ کشمیر میں سیب کے باغات ہیں، میں 1 کروڑ مولانا سے 1 کروڑ تعویذ اس سیب کے پیڑ میں میں ڈال دیتا ہوں، کیا وہ آم پھل جائے گا؟ نہیں پھلے گا۔ جو پیڑ ہے آم کا، کروڑوں تعویذ اس سے سیب نہیں پھلا پائے گی۔ اگر کبھی ایسا کہیں ہوتا ہے سوکھے درخت میں کھجور آ جاتی ہے، وہ اگر ولی کر دے تو کرامت ہے، نبی کرے تو معجزہ ہے۔ معجزہ وہ ہے جو خرق عادت کے طور پر ہو، یعنی عادت کے خلاف ہو۔ کرامت اسے کہتے ہیں جو عادت کے خلاف ہو، یعنی عادت ہے زمین پہ چلنا، ہواؤں میں اڑنا عادت نہیں ہے، لیکن کوئی ہواؤں میں اڑے یہ خرق عادت ہے، اب اینٹی ہیبیچول چیز ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کوئی ولی کرے تو کرامت ہے، کوئی نبی کرے تو معجزہ ہے۔ اگر سوکھے پیڑ میں اگر پھل نکل آئے، کوئی نبی نکالے تو معجزہ ہے، کوئی ولی نکالے تو کرامت ہے، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ کر دینا اس کے قریب مت جانا، ان کی باتوں کو غور سے مت سننا، ورنہ جوانی میں داڑھی رکھنی پڑے گی، جوانی میں اسلامی لباس پہننا پڑے گا، جوانی میں بوٹھا بنا دیں گے تو میں نارمل اور سافٹ بنا دیں گے، دور سے سلام کرنا، بس اتنا ہی سے تعلق رہے۔ اب اگر بچہ بگڑ گیا، وہ باپ کے سینے پہ چڑھ کے مار رہا ہے، 10 بیگھہ زمین بیچ کے میں نے بیٹے کو عالم بنایا، بیٹے کو میں نے انجینئر بنایا، وہ بمبئی میں کسی اپنی کلاس میٹ سے محبت کر کے شادی رچا لی، وہ بولتی ہے گھر نہیں جائے گا ورنہ میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گی، وہ تو ہاں ٹھیک ہے میں اپنا وطن چھوڑ دوں گا، مگر تم چاہیے، ماں کو چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ دوں گا مگر تم چاہیے، ماں باپ کو چھوڑا، 10 بیگھہ زمین بیچ کے میں نے MBBS ڈاکٹر بنوایا تھا، وہ ایک لڑکی کی محبت میں شہر بمبئی کا اپنا مسکن بنایا، وہ اپنا مادری وطن کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مولوی کے چکر میں مت پڑنا، اور جب بچہ ہاتھ سے نکل گیا تو اب مولانا کے پاس دوڑے دوڑے آئے، حضرت تعویذ دے دو، حضرت دعا کر دو، حضرت کوئی وظیفہ بتا دو، تو حضرت وظیفہ بتا دیں گے، برسوں کا بگڑا ہوا 1 منٹ میں سنبھل جائے گا۔ اگر تم بچوں کو بتایا ہوتا کہ مولوی کے قریب رہنا، ان کی باتیں سننا، حدیث سننا، تو مولوی اس کو بتاتا، چاہے ڈاکٹر انجینئر کیوں نہ بن جاؤ، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں کا چہرہ کوئی دیکھے گا حج مبرور کا ثواب ملے گا، باپ کا چہرہ کوئی دیکھے 100 بار ڈیلی مقبول حج کا ثواب ملے گا، ماں کے پاؤں کو بوسہ دے دے، جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ ملے گا۔ اگر تو اپنے بیٹے کو کچھ نہیں دیتا، مولوی کے قریب کر دیتا، وہ بیٹا تیرا تلوا چومتا، تیری پیشانی کو دیکھتا، تیرے پیشانی کو بوسہ دیتا، تیرے چہرے کی زیارت سے شاد کام ہوتا۔ تم نے عالم سے نفرت دلایا، اب وہ تجھے چھوڑ کر غیروں کے ساتھ دنیا بسایا ہے، اس کا 100% ذمہ دار تم ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم کے قریب کرو، مصطفیٰ کی حدیث سناؤ، ایک ٹکا مت دینا، مگر جنت کے شوق میں تیرا بیٹا جب تک تو زندہ رہے گا تیرا پاؤں چومے گا، پیشانی کو بوسہ دے گا، اگر تم مر گیا تو تیری قبر پہ تیرا بیٹا جا کے بولے گا الہی میرے باپ نے زمین مکان نہیں دیا پر ایمان کی دولت دی ہے، اس بیٹے کی دعا اگر قبول ہو گئی تو تیرے گناہوں تیری خطاؤں کی معافی ہوگی، جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ یعنی ایسی پرورش اپنے بچے کی کر، عالموں سے نفرت مت دلا، عالموں سے دوری اختیار کرنے کی بات مت کر، اس کے ذمہ دار ہم خود۔ اگر میرا بیٹا آج ڈکیت ہو گیا ہے، میرا بیٹا آج اگر لچا لفنگا ہو گیا ہے، زمین جیسی ہوتی ہے ویسی فصل پیدا ہوتی ہے۔ کشمیر کی زمین میں باسمتی چاول نہیں ہوتا ہے، بہار کی زمین میں اخروٹ اور زعفران کی کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ اس مثال کو غور سے سنیے گا، یہ دنیا ایک قانون سے بندھا ہوا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔
अलीम। यह सूरज अपने ठिकाने की तरफ दौड़ रहा है। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अखरजल मरआ। बाकी बयान करो रब्बे आला की, जिसने चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से रिलेटेड है। रोजाना चांद का निकलना और आफ्ताब का निकलना, सूरज का निकलना, सितारों का निकलना, रात का आना, दिन का आना, ये सारा काम सिस्टम से आधारित है। कोई काम सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। तो कश्मीर की सरजमीन है, यह सेब के लिए, अखरोट के लिए, ड्राई फ्रूट के लिए, जाफरान के लिए। बिहार की सरजमीन है जूट के लिए, जूट की खेती यहाँ नहीं होती और वहां सेब की खेती नहीं होती। कश्मीर की महाराष्ट्र की सरजमीन है, कपास के लिए मशहूर है, कपास की खेती कश्मीर में नहीं होती और महाराष्ट्र में सेब की खेती नहीं होती। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, ये कानून है कुदरत का। यहाँ ऐसे इसके हट के कुछ नहीं होता, यह कुदरत का कानून है। जमीन जैसी होगी सरखेज तो फसल अच्छी पैदा होगी, जमीन बंजर हुई तो फसल जली हुई पैदा होगी। जमीन है औरत, मर्द है बीज डालने वाला। अगर जमीन उजड़ी हुई मिली, अगर फाहिशा हो, जमीन बेहया हो, जमीन शादी से पहले दूसरों की गोद में झूलने वाली हो, 2010 मर्दों से आंख मिलाने वाली हो, पढ़ने के जमाने में अपने हाथ को गैरों से मिलाने वाली हो, यानी जिनकी ख्वाहिशात को का गलत रुख हो गया हो, यानी जो अपनी जवानी को उजाड़ चुकी हो, जो जवानी के दिनों को उन्होंने गंवा चुकी हो दूसरों की गोद में झूलकर। अगर जमीन बंजर हुई, कभी उस ग्रोह का बच्चा अब्दाल न होगा, वली न होगा, फरमाबरदार न होगा, कुतुब न होगा। चूंकि कानून है, जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, तो बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होता है। कानून है कुदरत का। जब बाप हो मूसा जंगी दोस्त जैसा, रात सजदे में गुजरे और दिन जिहाद में गुजरे, और माँ हो सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ, न जबान में खता की, न चेहरे ने खता किया, न हाथ से गुनाह सरजद हुआ, न पांव से गुनाह की तरफ चली, यानी सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ। जब खातून ऐसी हो और बाप ऐसा लाजवाब, रात भर सजदा और दिन में जिहाद, वह दोनों जब आपस में निकाह करके मिले, उसी पाकीज़ा नफूस से जो बच्चा पैदा होता है, औलिया सालिहीन का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। आज बच्चे मेरे उजड़ गए, लुच्चे लफंगे हो गए, जोकर की तरह चेहरा हो गया, समाज उजड़ गया। चूंकि मेरी माँ उजड़ गई, मेरे बाप उजड़ गए, आलिमों से नफरत, खानकाहों से दूरी, सरकार की मोहब्बत से तगाफुल और सुस्ती, नतीजे में आज मेरा सारा खानदान तबाह हो गया। क्योंकि कुदरत का कानून है, जब माँ हो तहज्जुद गुजार और बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा, तो उसी का बेटा सुल्तानुल हिंद 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। जब बाप हो तहज्जुद गुजार और माँ हो 17 पारे कुरान की हाफिजा, तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जन्म लेता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हो सैयदा सुलेखा, 80 साल की उम्र तक सर से आंचल नहीं खिसका, चेहरा अजनबी मर्द के सामने बेनकाब नहीं हुआ, यहाँ तक कि कलाई भी गैरों के सामने नहीं खुली। जब माँ इसी लाजवाब हो, तो बादशाह से लेके चपरासी तक सबों को तहज्जुद गुजार बनाने वाला महबूब इलाही उस वतन से पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, जिन्होंने बांदारी के बावजूद दुर्वेशी की चादर ओढ़ ली, जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, उसी का बेटा मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खां पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबीरा हुजूर आला हज़रत, नबीरा हुजूर आला हज़रत, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। कोई कुछ बोले, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। यह सब अल्लाह की है। ये दुनिया अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही सारा काम चलेगा। 6 महीने का टिकट मेरे हाथ में है। मैं आज फ्रांस जा रहा हूँ, कल फिलिस्तीन जाऊंगा, कल वहां जाऊंगा। घर में रहने की फुर्सत नहीं है, घर में नहीं रह पाऊंगा। 6 महीने का टिकट बना हुआ है। आज यहाँ रहना है, कल जापान जाना है, परसों फ्रांस जाना है। ये सारा प्लान था। ये इंसान ऐसा लगता था जैसे कोई खुदा नहीं, खुद
خود سے پیدا ہوا ہے, خود ہی اپنا فیصلہ کرنے والا ہے. امریکہ کی سڑکوں پہ 24 گھنٹے واقعات, خرافات, زناکاریاں اور شراب پانی کی طرح سستی ہو. ہندوستان میں جہاں سجدہ کرنا چاہیے ڈل جھیل کے کنارے وہاں زنا, بمبئی میں سمندر کے کنارے جہاں مصلی بچھا کے سجدہ کرنا تھا وہاں پہ زنا, جہاں نشاد باغ میں جہاں ہمیں مصلی بچھا کے یہ کہنا چاہیے الہی جب یہ ہاتھ کا بنایا ہوا باغ اتنا خوبصورت ہے تو تیری جنت کتنی خوبصورت ہوگی, وہاں سجدہ کرنا چاہیے. شالیمار باغ میں, نشاد باغ میں, مگر وہاں زناکاری. وکٹوریا پارک کلکتہ میں خوبصورت گارڈن ہے, وہاں مصلی بچھا کے 1000 بار درود پڑھنا چاہیے, وہاں لوگ چپکے ہوئے ہیں. بہار کی راجدھانی پٹنہ میں نیا پارک بنا تھا, بہت شاندار سجاوٹ ہے, وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا چاہیے الہی کتنی خوبصورت ہے یہ دنیا. نہیں, وہاں زنا, سمندر کے کنارے زنا, گوا میں زنا, یعنی 31st نائٹ کو کشتی میں زنا, یعنی جوا, شراب, زنا. فلم نے اس کو بڑھایا, یہ شرابی ہیرو ہے, یہ جوا باز ہیرو ہے, یہ عورتیں چڈی پہن کے ناچ رہی ہے, میری کروڑوں بیٹیاں اس کو دیکھ رہی ہے, اس کے سینے میں پیدا ہو رہا ہے میں بھی یہی بکنی پہنوں, ایسا ہی لباس پہنوں, میں بھی 2-4 لوگوں سے سمبند بناؤں. یعنی یہ سنیما نہیں, یہ نکالا تھا انہوں نے لوگوں کو سبق حاصل ہو, یہ بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے, بڑھاوا دیا ہے. یہاں تک کہ جو نیوز سنانے والی میری اینکر ہے, وہ اینکر بھی چڈی پہن کر, وہ بہانہ لباس پہن کر, جوانی کی نمائش کر کے وہ اخبار کیا پڑھے گا کہ بمبئی میں کیا ہوا, یوکرین میں کیا ہوا, روس میں کتنا بم گرا, وہ صاحب اس کے چہرے کو دیکھنے میں, اس کے نمائش بدن کے اسٹرکچر کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے. جب دنیا زنا سے بھر گئی, جب دنیا شراب سے بھر گئی تو کیا ہونا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا اللہ نے بھیج دیا, ایئرپورٹ پہ تالے لگ گئے, ریلوے اسٹیشن پہ تالے لگ گئے, امریکہ کی فیکٹری بند ہو گئی, یہاں تک کہ ہندوستان کی ساری فیکٹریاں بند ہو گئی, فلائٹ بند ہو گئی, ٹرینیں بند ہو گئی, 6 مہینے کا ٹکٹ ہرا ہے, ہر آدمی اپنے گھر میں, جیل میں بند ہو گیا. یعنی ساری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا, اپنا گھر جیل بن گیا. امریکہ کا وہ چوراہا 24 گھنٹے جہاں شباب کا رنگ رہتا تھا وہاں کتے بولنے لگے, ایئرپورٹ پہ کتے بھونکنے لگے, یہاں تک کہ نیتا سے لے کے چپراسی تک سب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی. اللہ نے بندوں کو بتا دیا بندہ ہو, بندہ بن کے رہنا, خدا بننے کی کوشش مت کرنا. اللہ نے سبوں کی خواہشات کے خلاف سبوں کے گھروں کو قید خانہ بنا کے بتا دیا تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, محبت رسول کان, منمانی نہیں, نفس کی غلامی نہیں, شرارت نہیں. اللہ کو بندوں کے ہوش ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں لگتی ہے. ہندوستان کی آدھی دولت آرمی پہ خرچ ہوتی ہے, پاکستان کی آدھی دولت آرمی پہ خرچ ہوتی ہے. کیوں؟ سرکشا پہ, سیکیورٹی پہ, سیفٹی پہ, یعنی میرے ملک پہ کوئی دوسرا حملہ نہ کرے. چائنا, جاپان کی آدھی دولت سیفٹی پہ خرچ ہوتی ہے تاکہ کوئی دوسرا آنکھ نہ دکھلائے. ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے. میرا ملک ہندوستان ہے, اگر آنکھ دکھائے کوئی سری لنکا اس کی آنکھ پھاڑ ڈالیں گے, آنکھ دکھائے کوئی بنگلہ دیش والا اس کی آنکھ نکال لیں گے. یہ میرا ملک ہندوستان ہے, ہمیں یہاں کے ذرے ذرے سے پیار ہے, ہمیں حق حاصل ہے. ہمارے ملک کی آدھی دولت سیکورٹی پہ خرچ ہو, سیفٹی پہ خرچ ہو. وہی حال جاپان کا ہے, وہی چائنا کا ہے, وہی امریکہ کا ہے, وہی پاکستان کا ہے, وہی سارے ممالک کا ہے. یہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک کی مہنگی فوج, قیمتی فوج, طاقتور فوج. ایک روحانی بات بول رہا ہوں, اولیاء صالحین کی بات بول رہا ہوں, جو ایک راہ معرفت کی بات بول رہا ہوں. مجھے پولیٹکس سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں ہندوستانی ہوں, ہندوستان میں رہوں گا, یہی اللہ نے چاہا تو مروں گا. ویسے تمنا ہے کہ مدینہ میں مروں, سرکار کے قدموں میں بقی شریف میں دفن ہو جاؤں. اگر وہاں نہیں مرا تو بھارتی میں مروں گا, تو بھارتی میں دفن رہوں گا, یہی رہوں گا, یہی رہوں گا, یہی اوپر رہوں گا, نیچے رہوں گا. وہ لوگ اپنی خیر منائے جو یہاں مرتے ہیں, جلا کے ندی میں ڈالے گئے سیدھے پاکستان پہنچ جاتے ہیں. وہ لوگ اپنی خیر منائے, میں تو یہی رہتا ہوں. ہماری کروڑوں درگاہیں, لاکھوں آستانے ہیں, وہاں کے اولیاء صالحین یہی رہتے ہیں. ہم ہندوستانی ہیں, محبت ہے مدینے سے, پر ایک ملک ہونے کے ناطے ہمارے ملک اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں غور سے سنیے گا. یہ بندہ دولت کما کے خدا سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے, کہتا کون خدا کیسا خدا, کون خدا کیسا خدا. نہیں, اب بھی نہیں سنبھلے گا یہ بندہ. دنیا کے 200 سے زائد ممالک کی فوج, دنیا کی آدھی دولت اس آرمی پہ خرچ ہوتی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا کیڑا, اس کے سامنے امریکہ کی فوج بے بس ہو گئی. ایک چھوٹا سا
कोरोना का कीड़ा हिंदुस्तान की फौज हाथ खड़ी कर दिया, चाइना जापान की फौज ने हाथ खड़ी कर दी। जापान के लोग कहते चाइना अटैक करे तो मैं नाको चने चबा दो, पाकिस्तान बोलता हिंदुस्तान अटैक करे तो फिर मैं उसकी औकात याद दिला दो, हिंदुस्तान बोलता पाकिस्तान अटैक करे मैं उसकी औकात याद दिला दो, अगर चाइना बोलता है हिंदुस्तान अटैक करे मैं उसकी औकात याद दिला दो। यहाँ दुनिया भर की सारी आर्मी मौजूद है, एक छोटा सा कीड़ा सारी आर्मी को बेबस बना दिया। उस कीड़े से कौन लड़ेगा? ये कीड़े ने अमेरिका को हिला दिया, हिंदुस्तान हिला दिया, कई करोड़ लोगों की जान ले लिया, दुनिया भर में सन्नाटा तारी हो गया। पता चला अल्लाह जब बंदों को सजा देना चाहता है तो बहुत बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा कीड़ा इंसानों का जीना दोहर कर देता है। इस कोरोना से सबक हासिल करना चाहिए कि बंदा मगरूर होकर न रहे, सीना तान के न चले, बकवास मत करे, कुरान जो कहता है उसे हक माने, हदीस में जो आया उसको हक माने, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी करे, अपनी पेशानी को जमीन पे टेक दे। अगर यह कहे कि मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह इसे उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर आला हज़रत, फैज़ान हुजूर आला हज़रत, फैज़ान हुजूर सदरुल्लाह बातिल, फैज़ान हुजूर सदरुल शरिया, नारे तकबीर। अल्लाह चाहता है कि मैं बंदा हूं, बंदा बन के रहूं। बंदा वो है जो झुका रहे, बंदा वो है जिसकी पेशानी झुकी रहे, बंदा वो है जो अरबों में खेले मगर मिस्कीन जैसा बन के रहे।